Hello, everybody. My name is Parampreet Singh, and today I'm going to discuss with you about history as an optional subject in the civil services examination. We all are aware of this fact that in the mains examination of the civil services, every student has to choose one optional subject. And I have generally found one question from the side of the students that what are the important things that should be taken into consideration while choosing as an optional any subject, and also what are the advantages of taking history as an optional subject. We are all aware of this fact that history as an optional subject is today one of the most popular optional subject in the list of the optional subject that is given by the UPSC examination. That is given to us by UPSC. So today I will be discussing with you that what are the major issues that are related with history as an optional subject. I will take into consideration the questions which I generally get from the side of the student regarding this optional subject, why should it be taken, and how it should be prepared. That is the purpose of this class today. So first and foremost, history as an optional subject is considered to be the safest optional subject today in the UPSC examination. Why safe? Because number one, 80% of the topics of the general studies history is, or the history syllabus of the general studies correlates with the history optional. And in that way, when a student starts studying this optional paper, he is already familiar with 80% of the topic. That makes the task easier and optional safe. Secondly, it is very easy to score somewhere around 300 plus marks in history, provided you have studied it in that manner. See, history as a subject is being taught in the schools, is being taught in the colleges, in many of the examination which is conducted as a competitive examination for services like SSC, or for that matter any other such service. We find that history as a subject is the part of the syllabus of that paper. Now, how should we study history? That depends upon the examination that we are going to give. In the case of the UPSC examination, we have to study it in that manner. That is according to the question which UPSC asks from us. Those students who are finding it difficult to score better marks in the subject is not due to the nature of the subject. It is more because of the nature of their preparation. They are not preparing this subject in the way it should be prepared. And then it is not only about history. आप कोई भी ऑप्शनल ले लो, और अगर आप उसको उस वे में प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जिस तरीके से वो प्रिपेयर होना चाहिए, या जिस तरह के सवाल उस सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्योंकि एट द एंड द मार्क्स विच यू आर गेटिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स विच यू आर राइटिंग. व्हाट हैव यू स्टडीड, हाउ मच हैव यू स्टडीड, हाउ मच यू हैव वर्कड हार्ड, that all depends upon the quality of your answer. Even by studying not very hard and you are able to write good answer by some God's grace, you will be getting the marks. So the point is that you need to write a good answer. But in general, it is believed that answer can only be good if you work hard with the subject and work properly with the subject. नहीं, मेहनत करने के दो तरीके होते. एक तो आप सही तरीके से मेहनत कीजिए जैसे की जानी चाहिए, और एक होता आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन कोई प्रॉपर है नहीं, गाइडेंस कोई प्रॉपर है नहीं, समझ उतनी अच्छी है नहीं, और आप बस झोंक में मेहनत किए जा रहे हैं, तो उससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है. तो उसी तरह से
आसान है हिस्ट्री में 300 प्लस स्कोर करना, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं हिस्ट्री के, उससे हम ऑलरेडी बहुत फेमिलियर रहते हैं, क्योंकि जीएस में भी हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, तो जीएस में पढ़ते समय ही हम फेमिलियर हो जाते हैं। प्लस स्कूल्स में हमने पढ़ा होता है, प्लस बहुत सारी फिल्में बनती है हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पे, जैसे फिल्म आ गई जोधा अकबर, जैसे फिल्म आ गई बैटल ऑफ पानीपत, जैसे फिल्म आ गई मणिकर्णिका, जैसे फिल्म आ गई पद्मावत, जैसे फिल्म आ गई मंगल पांडे। अब ये सारी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पे बनी हुई फिल्में हैं। इसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो कि जनरली यूट्यूब में हमारे नजरों के सामने आ ही जाती हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जो हम ऐसे इधर उधर ढूंढते समय कुछ चीजों को उनको पढ़ ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। तो फेमिलैरिटी होती है, बस उस फेमिलैरिटी को एक सही ढंग से समझने की जरूरत है। तो आसान होता है मार्क्स स्कोर करना, एंड फाइनली इट कैन मेक यू द टॉपर ऑल्सो। द टॉपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2001, that is yes, Shruti Sharma. She is from history optional. So no doubt history as a subject can even make you the topper of the UPSC examination. This is for those who generally come and say that they have heard from some sources that history is not a scoring subject. I have been teaching UPSC examination के लिए from last 15 to 20 years, and I take history for both GS as well as optional. This is one thing which I generally hear from sometime from the side of the student, that एक तो हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है। देखिए, अगर हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं होता तो हिस्ट्री से टॉपर्स नहीं होते। नहीं, श्रुति शर्मा जी का ही मार्क्स अराउंड 306 मार्क्स था आउट ऑफ 500 इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2001। उसके पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2027 में ईश्वर कुमार कंडू करके एक स्टूडेंट है, उनका मार्क्स है 316। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 300 प्लस है, और आज के दौर में किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको 300 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑप्शनल स्कोरिंग तो है, और अगर किसी एक के लिए है तो वो सबके लिए भी है। ऐसा नहीं था कि उसको यूपीएससी ने कुछ फेवर किया था, ऐसा भी नहीं था कि उसने कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड भी किया होगा, क्योंकि इनके इंटरव्यूज, इनसे जो बातें होती है वो पता चली जाती हैं लोगों को, तो उसमें ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी बताते ही हैं, और मोर और लेस आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी वही होती है जो जनरली स्टूडेंट जानते भी हैं। बस यही है कि कुछ उसको फॉलो करते हैं, कुछ उसको नहीं करते हैं। जो फॉलो करता है उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जो मेहनत करते हुए फॉलो करते रहता है वो ऑलरेडी अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो स्कोरिंग नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चे इससे क्वालिफाई किए हैं अपने एग्जाम को, तो आप भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी कि भाई सेफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज सिमिलर टू व्हाट यू आर स्टडिंग इन योर जनरल स्टडीज। उसके बाद एक चीज जो और सुनने को मिलती है अमूमन स्टूडेंट से, कि द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज सच that it is very difficult to understand it. Now there I find these kind of thing where the students say that we need to memorize so many dates, we need to memorize about so many events, so it at one point of time becomes very tough how to memorize all that thing. Now see, here again I would like to say you one thing, that if we talk about the nature of the subject, first and foremost we need to understand that as far as the nature of the subject is concerned, which should always be taken into consideration before deciding upon any optional. So as far as the nature of subject, that is history, is concerned, one thing which is always there, that out of all the optional subject that we have in UPSC examination, history is easy to understand. First and foremost, many of you would have already studied history in your GS. You would have not found it difficult to understand the topics. You find it difficult to remember them. Try to understand this thing. इसको समझना बहुत आसान है, और समझना क्यों आसान है?
क्योंकि हिस्ट्री इज मोर लाइक अ स्टोरी, इट इज लाइक अ फिल्म विच इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक टीचर है, वो आपको पूरी पिक्चर दिखाते जा रहा है, तो इसको समझना आसान है। इसको समझना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसमें करंट इवेंट्स का बहुत रोल होता नहीं है। तो चूंकि करंट इवेंट्स का रोल होता नहीं है, तो इसका मतलब यू डू नॉट हैव टू रेगुलरली अपडेट योर नोट्स। नो अपडेशन of notes are required in nature, are required in history. The nature of the subject is static. In this subject, the element of dynamism is very limited. Gandhi ji will not be born again to start something new. Akbar is not going to come again to start anything new. Whatever has to be done has been done. Now, in this way, it becomes beneficial for the student because you do not have to update or upgrade your notes. I hope all of you know this thing and understand this thing, that updating or upgrading the notes consumes time. It takes a lot of time. And in the preparation of the UPSC examination, one thing which everybody understands, that they need to save their time. They need to manage their time. The time is limited. So if there is no updation, if there is no upgradation of the notes, you will save your time and much of your burden is going to get reduced. Once you have prepared this subject nicely, after one preparation, the only thing which is left is revision. So you have to just revise what you have already understood or learned in your classes. While taking the class, the student makes the class notes. While taking the class, the student refer some textbook. एक बार जो आपने नोट्स बना लिए, एक बार जिन टेक्स्ट बुक्स को आपने पढ़ लिया, बस उसको अब आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। और रिवीजन करते वक्त आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा इस प्रिपरेशन में और कुछ नहीं चाहिए। सो इन दैट वे, इफ यू आर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट or if you are in your second attempt, because generally it is in the first or the second attempt that everybody wants to qualify this examination, और यही वो टाइम होता है जब आपके पास टाइम नहीं होता है। नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सब कुछ नया होता है, आपको सब कुछ पढ़ना होता है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो मैं कैसे अपना टाइम बचा के चलूं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट आते आते तक लोग कुछ सब्जेक्ट में माहिर हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स में नहीं देना होता, तो उनके पास टाइम बच जाता है सो दैट वो अपना नोट्स खुद से अपग्रेड कर ले, अपडेट कर ले। लेकिन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वालों के पास टाइम नहीं होता है, उनको क्लासेस भी करनी होती है, उनको टेस्ट सीरीज भी देने होते हैं, उनको न्यूज़पेपर्स भी ढंग से पढ़ना होता है, इनफैक्ट सीखना होता है पहले तो कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो अगर उस समय ऑप्शनल लेकर आपका टाइम बच सकता है तो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू शुड टेक दैट ऑप्शनल। दूसरी चीज जो कई बार आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी और मैंने तो हमेशा ही सुनी है स्टूडेंट से, कि हिस्ट्री एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। दैट इज ऑल्सो व्हाट आई जनरली हियर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट, दैट हिस्ट्री इज अ लेंदी सब्जेक्ट। Now see, first and foremost, regarding the length of the subject, one thing which we have to be very clear of, that if you will look upon the syllabus, you will find it to be lengthy. But there is something which has to be understood over here also. The syllabus of history is lengthy because it is very detailed. That is the reason why it is lengthy. It is very detailed. It is not open-ended. It is not open-ended. Every small aspect of the subject is mentioned in the syllabus. It is very precise. The syllabus is very precise. Everything
which can be included has already been included. And in one sense, this is good. It's good. Good in the sense कि आपके पास अब सारा टॉपिक लिखा हुआ है, आपको खुद से कोई टॉपिक सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। बहुत डिटेल में यह सिलेबस दिया गया है, बहुत डिटेल में, और डिटेल में दिए जाने के कारण जब आप इसको ऑप्शनल पेपर के सब्जेक्ट बुक से देखोगे तो उसमें आपको ऑप्शनल में टॉपिक्स ज्यादा दिख जाएंगे। अगर इसी सिलेबस को छोटा करके लिखना होता तो जैसे जीएस में लिखा हुआ है लिख देते। आप देखिए जीएस के पेपर 1 में, यानी प्रीलिम्स वाला जो जीएस में उसकी बात कर रहा हूं, इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन जीएस पेपर 1 दे हैव रिटन द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये प्रीलिम्स का जीएस हिस्ट्री का सिलेबस है। अब इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट एक लाइन का सिलेबस है, और इस एक लाइन के सिलेबस में सारा एंशिएंट आ जाता है, सारा मेडाइवल आ जाता है, सारा मॉडर्न आ जाता है, और सारा कल्चर वाला पोर्शन आ जाता है। इसको खत्म करने में हमें क्लास में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि भाई सिलेबस लिखने में जो किया गया ना काम ऑप्शनल पेपर में, वो उस सिलेबस की लेंथ को बढ़ा रहा है। अदरवाइज ये है उतना ही जो आप जीएस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएस में भी आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जीएस में आप पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं अगर हम मेंस के जीएस की बात करें तो। अब उसी को इन्होंने डिटेल में लिख दिया, चूंकि ये ऑप्शनल पेपर है तो ये प्रिसाइज्ड है, ये डिटेल्ड है। लेंथ तो ऑलरेडी पहले भी थी जब आपके वो जीएस में लिखा हुआ था, लेकिन आपको लेंथी वहां लग नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने लिखा थोड़े अलग ढंग से। तो आप इस पे मत जाइए कि कितने टॉपिक्स दिए हुए, आप इस पे जाइए कि इतने सारे टॉपिक इस तरह से क्यों दिए हुए, क्योंकि उन्होंने डिटेल सिलेबस दे दिया है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ऑप्शनल पेपर का सिलेबस देखा है तो आप इस बात को और अच्छा समझ पाएंगे, और नहीं देखा है तो वीडियो के बाद एक बार देखिएगा। मैंने जो ये सिलेबस को पूरा समझा है और मैंने जितना इसको पढ़ाया है, मुझे एक चीज जो समझ में आती है कि सिलेबस लंबा दिखता जरूर है पर है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर आर मेनी इंटरकनेक्शन एंड लिंकेजेस अमंग द टॉपिक्स, मेनी interconnections and linkages among the topic. This is there in the syllabus. Interlinkages and connection in the topics. What does it mean? It simply means that if you finish one topic, finishing one topic means that you have automatically covered many other topic. इस सब्जेक्ट में इंटरलिंकेज बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त है, बस उसको समझने की जरूरत है। आप एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, आपके एक टॉपिक के साथ बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, आप एक बार सिलेबस खोल लीजिएगा अगर आपके पास है अभी, नहीं तो आप बाद में जब वीडियो के साथ देख के खोलिएगा। आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है ऑप्शनल पेपर का, उसमें पेपर 1 का टॉपिक फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये टॉपिक 1 है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये टॉपिक 1 है। इस टॉपिक को खत्म करने का मतलब है कि आपने 5 टॉपिक साथ में खत्म कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में एक सोर्सेज जो हम पढ़ते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अगर आपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा है ढंग से, तो उसको पढ़ने के साथ ही यू हैव कंप्लीटेड मच ऑफ योर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। लेट मी इरेज इट। हां, सो आई वॉज टॉकिंग विथ यू अबाउट द टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दिस इज द टॉपिक। ये टॉपिक 1 है आपके जीएस पेपर, सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 का। टॉपिक 1 ऑप्शनल पेपर 1। इसको खत्म करने का मतलब है, क्योंकि इसमें एक सब हेडिंग है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अगर आपने पढ़ लिए तो विद द कंप्लीशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड मच ऑफ योर प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री।
prehistory and proto-history. Prehistory and proto-history is the topic second of your syllabus. This is topic 1. और टॉपिक 1 के अंदर की हेडिंग है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. इसको खत्म करने का मतलब प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है. इसको खत्म करने का मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. इसको खत्म करने का मतलब यू हैव कंप्लीटेड मच ऑफ योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज टॉपिक 3. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कर लेने का मतलब you have also completed much of your megalithic culture. Megalithic culture. This is your topic 4. Which means that completing one subtopic of topic 1, you are completing 3 other topics. The main topics of your syllabus. ये सिर्फ एक है, archaeological sources. अब archaeological sources के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ देयर इज अनदर थिंग विच इज अगेन द सब हेडिंग ऑफ द टॉपिक 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सब हेडिंग ऑफ द टॉपिक 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दैट इज लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस, दिस इज अनदर सब हेडिंग. कवरिंग लिटरेरी सोर्सेज मीन्स यू हैव डन मच ऑफ योर आर्यन and Vedic period. This is your topic 5. Aryan and Vedic period. Completing literary sources means you have done much of your Sangam literature and culture. Sangam literature and culture, that is your topic 9th. Paper 1. And covering literary sources means you have also done the topic themes in early Indian history. Themes in early Indian history, that is topic 12. अब देखिए, यानी एक सब टॉपिक आपने किया है टॉपिक 1 का लिटरेरी सोर्स. ये 3 टॉपिक्स आपके उसके साथ कवर हो जाते हैं. मैं टॉपिक वाइज इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप एक बार सिलेबस से चेक करना है इसको, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज में हम पढ़ेंगे क्या. अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द वेदास, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द संगम लिटरेचर, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टेक्स्ट सच एज मालविका अग्निमित्र ऑफ कालिदास, देवी चंद्रगुप्त ऑफ विशाखदत्त, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, पुराणाज, एपिक्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैना लिटरेचर. इन्हीं को पढ़ के तो हम अर्ली इंडियन हिस्ट्री की थीम्स को समझते हैं. मोस्ट ऑफ इट इज कल्चरल हिस्ट्री. नहीं, दैट वन द टॉपिक 12th. यू सी द सिलेबस, मोस्ट ऑफ इट इज कल्चरल हिस्ट्री. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप इंटरलिंकेजेस अगर समझ लेंगे तो ये सिलेबस बहुत बड़ा नहीं लगता है. ये सिर्फ दिखने में बड़ा लगता है क्योंकि आप वो इंटरलिंकेज पकड़ नहीं पा रहे हैं, या जो आपको बता रहा है बड़ा है वो समझा नहीं पा रहा है. आप एक बार इसको इस नजर से देखिएगा. ऐसा नहीं कि जितने टॉपिक लिखे हुए सबके लिए अलग अलग नोट्स बनते हैं, सबके लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं. एक ही क्लास में एक ही नोट्स में आप 3-4 टॉपिक एक साथ कवर कर लेते हैं. बस चूंकि सिलेबस बड़ा डिटेल्ड है इसलिए उन्होंने हर जगह उसी चीज को अलग अलग तरीके से लिख दिया है. दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर चांस नाउ. दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर चांस. सिमिलरली इन द टॉपिक 1 देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ द टॉपिक 1. जो सोर्सेज वाला पार्ट है पेपर 1 का, उसका एक और पार्ट है, उसको लिखते हैं वो फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड अरब राइटर्स. इसी का एक पार्ट है फॉरेन अकाउंट ऑफ ग्रीक, चाइनीज एंड अरब राइटर्स. ये भी लिटरेरी सोर्सेस का ही पार्ट मान लिया जाता है लेकिन फॉरेन अकाउंट्स का है. तो अगर हम फॉरेन अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते के साथ कहीं ना कहीं वी विल कवर द टॉपिक अल बेरूनीज इंडिया. दैट इज टॉपिक 14th ऑफ योर सिलेबस. अल बेरूनीज इंडिया.
Studying foreign account means you will cover the topic Ghurian invasion. Ghurian invasion. That is the invasion of Muhammad Ghori, which led to the establishment of Delhi Sultanate. It is topic 15. So this kind of interlinkage in this subject help us to quickly complete the syllabus. It appears by seeing the syllabus that it is very lengthy and will be taking lot of time. It is not that. 5-5, 6-6 टॉपिक एक टॉपिक के अंदर कवर हो जा रहे हैं और होते हैं बड़े आसानी से होते हैं क्योंकि इंटरलिंकेज बहुत ज्यादा है ना, एक ही टॉपिक है वो, बस अलग अलग जगह लिख दिया है उसको. और along with it there is one more thing which I hope you will be understanding better, that in history there is lot of continuity. सिर्फ इंटरलिंकेज नहीं है, कॉन्टिन्यूटी भी बहुत हाई है हिस्ट्री में. कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द एंशिएंट एंड द मेडाइवल एजेस वी फाइंड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोनार्किकल. देयर यूज्ड टू बी द किंग्स, नहीं मोनार्की हुआ करती थी. तो पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोनार्किकल एंड बिकॉज द पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोनार्किकल द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, be it Mauryas, be it Guptas, be it Shungas, be it Satavahanas, नहीं be it Palas, be it Rajputs, ये कोई भी ले लो आप, more or less nature of government similar होगा because all of them are monarchies. In the medieval ages, Delhi Sultanate monarchy. Then after Delhi Sultanate in the medieval ages, Mughal Empire monarchy. With some additional changes from one dynasty to another, the things can be understood. आपको सब कुछ नया नहीं समझना होता है. आपने अगर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया है तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन समझने में सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज जाननी होंगी. टर्मिनोलॉजीज चेंज होती हैं, बाकी चीजें तो वही की वही रहती है. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो वही है, उसमें क्या अलग कोई कर लेगा. मोनार्की ही है. या तो ऐसा होता ना कि भाई मौर्यन मोनार्की है और गुप्तास जो है वो डेमोक्रेसी है, तब हमें पूरा पढ़ना पड़ जाता कि अच्छा इनका डेमोक्रेसी कैसे चली, इनकी गवर्नमेंट कैसे चली. गवर्नमेंट एक ही जैसी चलती है सबकी, राजाओं के नाम बदल जाते हैं, कैपिटल्स चेंज हो जाते हैं और थोड़े मोड़े ऊपर नीचे के चेंजेस होते हैं. तो उसको समझना कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो आसानी से समझा जा सकता है. एक बार आपने नेचर ऑफ गवर्नमेंट समझ लिया उस पीरियड का, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. द पॉइंट हियर इज अगेन दैट इफ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स फ्रॉम वन पीरियड और फ्रॉम वन डायनेस्टी टू अनदर डायनेस्टी, then easily you can understand the development, political, social, economic, religious and cultural. एक जो पूरा पीरियड है एंशिएंट वो एक जैसा चला है, दूसरा जो पूरा पीरियड है मेडाइवल वो दूसरे तरीके से चला है, लेकिन वो पीरियड तो बड़ा है, उसमें जितना कुछ हुआ है सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है. इट इज वेरी फेमिलियर विथ ईच अदर, वेरी फेमिलियर विथ ईच अदर. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इन द न्यू पैटर्न ऑफ जीएस 2013 onwards, the new pattern of GS 2013 onward, the topics which are found in history optional syllabus has been accommodated almost completely in your GS. Almost completely. In your GS, you have to study the whole of ancient history. In your GS, you have to study the whole of medieval history. In your GS, you have to study the whole of modern history. You have to study the whole of post-independence consolidation and reorganization. And then you have to study the whole of world history. यही पढ़ना है GS में भी. ये सारा का सारा हिस्ट्री ऑप्शनल का ही सिलेबस है. The logic is that even if you are not taking history as an optional subject, about 80% of history optional you have to study. So with little bit more preparation, this is what point I'm trying to make. With little bit more preparation, it gets completed.
लिटिल बिट मोर प्रिपरेशन, आपका एक ऑप्शनल तैयार हो जाएगा सिर्फ 20% एक्स्ट्रा पढ़ के। रेस्ट तो आप ऐसे भी पढ़ते ही हो, आप हिस्ट्री ऑप्शनल लो चाहे ना लो, उतना तो आपको ऐसे भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो और बहुत बार बच्चे कहते हैं डेट्स हम कैसे याद रखेंगे, देखिए पहली चीज तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ऑप्शनल पेपर सिर्फ मेन एग्जामिनेशन में आएगा, यह प्रीलिम्स का पार्ट अब रह ही नहीं गया है। और आप भी जानते हैं कि मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं, मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल नहीं होते हैं। तो जिस भी फैक्ट को रटने की आप बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे भी आपको रटना होता है आपके जीएस के लिए। ऑप्शनल में तो ऐसे भी फैक्ट नहीं रटने होते, क्योंकि ऑप्शनल है ही सिर्फ मेन एग्जामिनेशन में। और आप भी इस बात को जानते होंगे, जिन लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जो कर चुके हैं, कि मेंस एग्जामिनेशन चलता है एनालिसिस पे, कंसेप्ट्स पे, फैक्ट्स पे नहीं। तो ये तो ऐसे भी फैक्ट्स याद नहीं रखने, और जो थोड़े मोड़े याद रखने वो ऐसे भी आपको याद होंगे, क्योंकि जीएस में तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। नहीं, हर साल 15-16 क्वेश्चन हिस्ट्री से तो आते ही आउट ऑफ 100, तो वहां तो ऐसे भी चॉइस नहीं है। तो बस सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत है और समझ डेवलप कर लीजिए। जो लोग बोलते हैं, बहुत बार उनकी बातों में नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो आप अपना सोचिए, लोगों के सोचने पर बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता है, उनको समझ ही नहीं है तो क्या बोलेंगे वो लोग। ठीक है, पहली चीज ये। अब दूसरी चीज, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस पे, ताकि आपको वो आइडिया भी हो जाए जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे 80% सिलेबस सिमिलर है। देखिए, ये है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस। पेपर 1, पेपर 2 जैसे सब ऑप्शनल में होते हैं, यहां भी है। पेपर 1 में है एंशिएंट इंडिया, पेपर 1 है सेक्शन ए का एंशिएंट इंडिया। ये आप प्रीलिम्स में पढ़ते ही हैं, ये आप मेंस में पढ़ते ही हैं। पेपर 1 का ही सेक्शन बी है मेडाइवल इंडिया, पेपर 1 का सेक्शन बी मेडाइवल इंडिया है। ये आप फिर प्रीलिम्स में पूरा पढ़ते हैं, मेंस में भी पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेपर 2। पेपर 2 का सेक्शन ए है मॉडर्न इंडिया। आपका प्रीलिम्स और मेंस का जीएस का जो सिलेबस है, उसमें सारा मॉडर्न इंडिया आपको ऐसे भी पढ़ाई दिया जाता है। पेपर 2 का सेक्शन बी है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर से मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ही लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि हम जीएस के लिए जब पढ़ते हैं उस चीज को, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। वैसे तो जाना चाहिए, पर अब वही बात है कि कितना डिटेल आप पढ़ लेंगे किसी भी सब्जेक्ट का जीएस में, तो हम जाते नहीं है। जब हम ऑप्शनल ले लेते हैं तो उसी चीज को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सिंपल सी बात यही है, बस और कुछ नहीं। लेकिन टॉपिक से फेमिलियर रहते हैं, 60 to 70% कंटेंट एकदम सेम हो जाता है, उसमें 20-30% हम एडिशन कर देते हैं। चूंकि ऑप्शनल है तो गहराई और होनी चाहिए आपकी बातों में, पकड़ और अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, लगे कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जीएस वाला जो लिखेगा और आप जो लिखेंगे उसमें फर्क दिख जाना चाहिए, और वो दिख जाता है, क्योंकि आप इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, उनसे ज्यादा ही अच्छा पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत टाइम बचाने जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन नहीं लेते हैं तो जीएस में हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सोचिए कितना टाइम देना पड़ेगा। आप हिस्ट्री ऑप्शन ले लीजिए, वो पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा। वही टाइम आप ज्योग्राफी में लगा दो, इकोलॉजी में लगा दो, नहीं ऐसे सब्जेक्ट में लगाओ जो डायनेमिक है, जिनमें करंट अफेयर्स का बहुत रोल है। यहां से टाइम तो बचा ही लोगे यार। उस टाइम को बचाने के लिए हिस्ट्री बहुत सेफ ऑप्शनल है, बड़ा बढ़िया, बड़ा तगड़ा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल की एक और जो खासियत है वो ये कि चूंकि नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज स्टैटिक, देयर इज हाई चांसेस ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑप्शनल पेपर के, और ये सब ऑन स्क्रीन में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बाद में चेक भी कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से ऐसा बता रहा हूं जो कि सही नहीं है। आप देखिए 1992 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ऑन 23 जून 1757 द मिडिल एजेस ऑफ इंडिया एंडेड, मॉडर्न एज बिगिन, कमेंट। ये हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन 2006 में फिर पूछा है, 2016 में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी हाउ डिड इंडिया ट्रांजिट फ्रॉम मेडाइवल टू द मॉडर्न एज। बैटल ऑफ प्लासी मतलब यही 23 जून 1757। नेचर भी यही है क्वेश्चन का, बस खाली वर्ड्स बदल दिए। फिर उसके बाद
वर्डिक्ट ऑफ प्लासी वॉज कंफर्म्ड बाय इंग्लिश विक्ट्री एट बक्सर। 1996 का क्वेश्चन है, 2002 में एज इट इज वो सारा क्वेश्चन पूछ दिया है, यहां तो वर्ड्स भी चेंज नहीं किए हैं। 1984 में क्वेश्चन पूछा है सिंध वॉर पे, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध येट वी शैल डू सो, वेरी एडवांटेजियस यूजफुल इवन पीस ऑफ रेस्कैलिटी इट विल बी कमिंग। 1990 में उसको पूरा का पूरा रिपीट कर दिया, 84 के बाद 90, 6 साल बाद। इस तरह की रिपीटेबिलिटी दूसरे ऑप्शंस में मिलना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि दूसरे ऑप्शंस का नेचर थोड़ा डायनेमिक होता है। यह रिपीटेबिलिटी उन्हीं सब्जेक्ट में दिखती है जहां नेचर स्टैटिक होता है। आप देखिए 1995 का ये क्वेश्चन, 2000 का ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है। 1997 का ये क्वेश्चन और 2002 का ये क्वेश्चन, ये सारा सेम है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2006 का ये क्वेश्चन, 2013 का ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑप्शनल के क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अगर आपने पिछले 10-15 साल के यूपीएससी के हिस्ट्री के ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी ढंग से किए हुए हैं, तो देयर आर हाई चांसेस दैट फ्यू ऑफ देम यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर, वेरी हाई चांसेस। नाउ दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोइंग द आंसर, you have already written an answer on it, क्योंकि भाई ऑप्शनल प्रिपरेशन वी डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग में हम प्रैक्टिस में करेंगे क्या? जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं का प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और मजेदार बात कि ये रिपीटेबिलिटी सिर्फ ऑप्शनल के अंडर नहीं है, कई बार उन्होंने ऑप्शनल वाले क्वेश्चन जीएस वाले पेपर में पूछ लिए। तो जो बच्चे ये मानते हैं कि भाई जीएस के लिए उतनी हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है जितनी कि ऑप्शनल के लिए पढ़नी होती है, तो अगर टॉपिक सिमिलर भी है तो क्या यहां पढ़ना ज्यादा पड़ेगा? देखिए, जीएस में भी समझ वैसी ही डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन उन्होंने जीएस में पूछा है वही क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शन में भी पूछा हुआ है उस टॉपिक से। ये क्वेश्चन देखिए, 2012 में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया था, अमेरिकन रिवोल्यूशन वॉज एसेंशियली एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मर्केंटलिज्म, और इसी क्वेश्चन को 2013 में उन्होंने फिर पूछा है जीएस में। अब तो इसका मतलब अगर आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो जीएस के लिए उसको पढ़ रहे हैं उनको कम पढ़ना होगा, उनको भी वैसे ही उतना ही पढ़ना होगा जितना कि ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। बस यही है कि आप उस समय ये बात सोचते नहीं, इसलिए आपको चीजें आसान लग जाती हैं। नहीं, कई बार हम ओवरलुक कर देते हैं और वही फिर फंसते हैं जाके एग्जामिनेशन हॉल में। आप कुछ एग्जांपल्स तो मैं लेकर आए हैं, आप देख लीजिएगा, यू कैन गो बैक एंड फाइंड इट। इसके अलावा एक फायदा और जो हिस्ट्री ऑप्शनल का होने जा रहा है वो है, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं वैसे ही। नहीं, यहां देखिए, ऑप्शनल पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था 2015 में सूफिज्म पे, वैसा ही क्वेश्चन 2014 में जीएस में पूछा गया था, उसको 2015 में ऑप्शन में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये मोर और लेस सिमिलर ही है। आप ये मत समझिए कि डेप्थ में भी बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, एक और फायदा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का आपको होने जा रहा है वो है एसे राइटिंग में। हर साल एक आध टॉपिक एसे के ऐसे आ ही जाते हैं जो कि हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए लिखना बहुत आसान होता है। अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में एक एसे का टॉपिक आया था, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अब जिसने हिस्ट्री ऑप्शन लिया हुआ है कितने अच्छे सारे एग्जांपल दे सकता है, कितने सारे अच्छे एग्जांपल दे सकता है, isn't it? उसी तरह एक और जो क्वेश्चन है 2014 का एस्से का, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कई बार क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं मुगल एम्पायर का डिक्लाइन या दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन, मैं ये कोट यूज करता हूं, वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर्स इन इंडिया आर द वीक सक्सेसर्स ऑफ दैट एम्पायर। तब वहां एक कोट यूज कर देता हूं मैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था और ये सच है। अब आपके पास कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। तो हर साल एसेस में एक आध टॉपिक ऐसा मिल ही जाता है, हिस्ट्री आपके वहां भी काम आ जाती है। एक तो बात ये होगी कि भाई हिस्ट्री का यूज कहां कहां है। काफी यूजफुल सब्जेक्ट है, काफी आसान सब्जेक्ट है, और चूंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है जीएस सिलेबस में और हिस्ट्री के ऑप्शनल सिलेबस में, तो आपके लिए सेफ भी है और आसान भी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि हिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्या है और ब्रेकअप कैसे है टॉपिक वाइज चीजों का। तो पहली चीज तो यह कि जैसे हर ऑप्शनल में होता है वैसे ही हिस्ट्री में दो पेपर है, पेपर 1
और पेपर 2, ये 2 पेपर होते हैं। 250 मार्क्स के दोनों पेपर हैं। मैक्सिमम मार्क इज 250, टोटल 500, टोटल 500, 250 मार्क्स का पेपर 1, 250 मार्क्स का पेपर 2। अब इन पेपर 1 टोटल क्वेश्चंस आर 8, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए एंशिएंट हिस्ट्री है, सेक्शन बी मेडाइवल हिस्ट्री है। इन 5 में से टोटल अटेम्प्ट 8 में से टोटल अटेम्प्ट करने हैं 5, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी, एवरीबडी हैव टू अटेम्प्ट इट। उसके बाद 3 क्वेश्चन चॉइस के, ठीक है। अब एक चीज और, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसका पेपर 1 का, वो होगा मैप, ये वाला। टोटल 20 साइट्स विल बी गिवन, 20 साइट्स विल बी गिवन, दे विल ऑलरेडी मार्क दो साइट। ऐसा ही मैप मिलेगा आपको, साइट्स मार्क की हुई है, साइट्स मार्क की हुई है, आपको मार्किंग नहीं करनी है, आसान है बहुत, मार्किंग नहीं करनी है। साइट्स मार्क की हुई है, आपको सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस एक साइट पर 30 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे देना है। 30 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट साइट, एवरीवेयर 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स हर साइट का, बस। और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको हेल्प किया है यूपीएससी ने। कैसे? इसी के साथ आपको इस तरह का हिंट दिया गया है कि पहली साइट पैलियोलिथिक साइट है, दूसरी साइट पैलियोलिथिक फैक्ट्री साइट है, तीसरी साइट नियोलिथिक साइट है, चौथी वाली हड़प्पन साइट है, पांचवी वाली कैल्कोलिथिक साइट है। आपको हिंट दिया है यूपीएससी ने, हिंट से आपको पकड़ लेना कि साइट कौन सी होगी, क्या नाम होगा इस जगह का, और फिर उस नाम के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 50 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन इज 5, एवरी क्वेश्चन इज 50 मार्क्स, तो ये 250 हो ही जाता है। ये 50 मार्क्स बड़े आसान वाले मार्क्स है, क्योंकि अगर आपको अच्छा अध्ययन है एंशिएंट हिस्ट्री का तो साइट्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता है, और मैप प्रैक्टिस जब हम करते हैं क्लासेस में तो और आसान हो जाती है चीजें। इस एक क्वेश्चन में आप इजीली 40 मार्क्स तक उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखने वाली बात है नहीं, आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में 30 शब्द लिख देने, तो इजीली मार्क्स उठाए जा सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 5th है वो पेपर 1 का जो सेक्शन बी है उसमें आ जाता है, वो है शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन। शॉर्ट नोट लिखना होता है, दे विल गिव यू सम टॉपिक और दे विल गिव यू वन heading kind of a thing, and then they will ask you to write a short note on it. Like for example, yes, there could be a question, assess the rule of Akbar in the Mughal Empire. Assess the rule of Akbar in the Mughal Empire. You have to write 150 words on it. Or for example, the economic measures of Alauddin Khilji. Short note का मतलब एक टॉपिक दिया है छोटा सा, उस पर आपको 150 शब्द लिख देने, बस, और कुछ नहीं। देर आर ऑल टुगेदर 5 क्वेश्चंस अंडर 1, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, ठीक है, 5 होते हैं, और पांचों 10-10 मार्क्स के होते हैं। इनमें सिर्फ 150 शब्द लिखने होते हैं। ये सबसे आसान होते हैं, क्योंकि 150 शब्द लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता है जब आपको 600, 650 शब्द लिखने हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन पूरे ऑप्शनल पेपर में भी नहीं आता है जिसमें आपको 600, 650 शब्द लिखने हो। एट द मैक्स इन ऑप्शनल पेपर यू हैव टू राइट नॉट मोर देन 350 to 400 words in a question, 350 to 400, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो जा रहा है क्वेश्चन का वो है 20 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो जब 150 शब्द मांग रहे हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 300 शब्द होने चाहिए। 20 मार्क्स के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं है, चलिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं उसको,
तो 350 से 400, इससे ऊपर तो लिखना ही नहीं है। तो खामखा परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ठीक वैसे जैसे पेपर 1 है वैसा ही पेपर 2 है। पेपर 2 में भी 2 सेक्शंस होते हैं, यहां पर भी टोटल क्वेश्चन 8, 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन। सेक्शन ए मॉडर्न हिस्ट्री है, सेक्शन बी वर्ल्ड हिस्ट्री है। यहां भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपल्सरी। बस यहां पर नो मैप, नो मैप। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 आर कमेंट टाइप क्वेश्चन। जैसे यहां पर शॉर्ट नोट है, यहां पर कमेंट है, बस और कुछ नहीं। कमेंट का मतलब यू हैव टू गिव योर व्यूज। शॉर्ट नोट में यू डोंट नीड टू गिव योर व्यूज, वट एवर इज स्टैब्लिश्ड दैट यू राइट डाउन सिंपली। तो in this way there are all together 2 papers, paper 1 and paper 2. In every paper there are 2 sections, section A and section B. All together there are going to be 8 questions in both the paper, 8 questions each. Out of 8 you have to attempt 5 only, here also and here also 5 ही attempt करने, जिसमें से 1 और 5 कंपल्सरी होगा दोनों में। इसमें मैप है, इसमें मैप नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट होता है जिसमें सीधे सीधे लिख देना होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कमेंट टाइप होता है जिसमें थोड़ा आपको अपना ओपिनियन लिखना पड़ता है, वो आप सीधे सीधे नहीं लिख पाएंगे, तो वो भी आप समझ जाएंगे क्लासेस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब मैं फाइनली आता हूं कि क्लासेस के थ्रू कैसे इन चीजों को अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहली चीज, इफ आई टॉक अबाउट क्लास पेडागोगी और हाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर क्लासेस, हाउ डू वी कंडक्ट द क्लासेस फॉर ऑप्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग इन द क्लास इज कॉम्प्रिहेंसिव coverage of the syllabus. This is what is going to be done in the class. Comprehensive coverage of the syllabus. Comprehensive coverage of the syllabus means we are going to begin with NCERT level. यहां से शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे इसको ले जाएंगे एडवांस लेवल पे, NCERT से शुरू करते हुए, so that even beginners do not find it difficult. Those who do not have any academic background of history, they should not find it difficult. We are going to start from the scratch. No problem in understanding the things. Second thing which will be done in the class is innovative study plans. And what is innovative study plan? That is interlinkages will be taught. We will be studying the things through interlinkages. Interlinkages will be taught. We will be trying to study the things through pictures. I mean still pictures. Especially art and architecture वाला जो पार्ट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्तूपा आर्किटेक्चर, ये वाला जो पार्ट है, मुगल आर्किटेक्चर, स्टिल पिक्चर्स. We will be also using some flow charts to understand the things. Through PPT presentations, we will try to understand the thing. Innovative study plan, ताकि वो डेवलपमेंटल इंटरलिंकेजेस आपको समझ में आ जाए. ठीक है. इसके अलावा to help the student, I will also be providing you some PDF notes and short videos which will be sent to you on your WhatsApp groups. You can read those PDF notes on your own, you can watch those short videos on your own, and then easily you can understand the things. The topic which are going to be taught in class, ये उसका होता है. Then one thing more which will be done here is number 4th, answer writing practice, which is very important again.
along with the classes, when the topic will get over, answer writing practice will be done. In this answer writing practice, previous year question and some self prepared questions, self prepared means जो मैंने प्रिपेयर किए, इन दोनों को मिला के हम आंसर राइटिंग करेंगे. और फाइनली जब ये सारा कुछ हो जाएगा और एक बार एक मॉड्यूल खत्म होगा, जैसे 4 मॉड्यूल है इसमें, एंशिएंट, सेकंड मेडाइवल, फोर्थ मॉडर्न, थर्ड मॉडर्न, फोर्थ वर्ल्ड. मॉड्यूल टेस्ट भी लिए जाएंगे, मॉड्यूल टेस्ट भी हो जाएंगे और कॉम्बाइन टेस्ट भी हो जाएंगे. यानी पूरा पेपर 1 का एक बार, पूरा पेपर 2 का एक बार. तो इस तरह से यू आर गोइंग टू कंप्लीट द थिंग्स. एंड देन फाइनली एक जो और सवाल कई बार आपका होता है कि हमें खुद से कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी. विच बुक्स वी हैव टू स्टडी ऑन आवर ओन. दैट इज वन थिंग विच वी जनरली फाइंड समटाइम, विच बुक वी हैव टू स्टडी ऑन आवर ओन. देखिए मैं आपको किताबें बता दे रहा हूं, आप बस उन्हीं किताबों को रेफर कीजिएगा. उसके अलावा जो चाहिए होगा वो मैं क्लास में करा दूंगा. जैसे जो क्लास में जो एंशिएंट हिस्ट्री में कराऊंगा उसमें मैंने एनसीईआरटी इंक्लूड की हुई है. मैं सिर्फ बता दूं, मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, पीडीएफ नोट्स और जो क्लास नोट्स. एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, रोमिला थापड़ कवर हो जाएगा, उपिंदर सिंह कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में. मेडाइवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा कवर हो जाएगा, जेएल मेहता कवर हो जाएगा. ये सारा कुछ होकर पीडीएफ नोट्स और क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिपान चंद्रा बहुत हद तक कवर हो जाएगा, बीएल ग्रोवर कवर हो जाएगा, इसमें नॉर्मल लोवे कवर हो जाएगा, एल मुखर्जी कवर हो जाएगा. तो ये क्लास में ही कवर हो जाएंगे. लेकिन चूंकि खुद से भी थोड़ा टेक्स्ट बुक रिवीजन होना चाहिए, आप जो अपने जीएस में हिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना वही पढ़िएगा यहां पर, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएस में आर.एस. शर्मा की बुक काफी चलती है आजकल. कुछ लोग उसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग ये जो ऑक्सफोर्ड पेपरबैक से उनकी बुक आती है वो पढ़ लेते हैं. चूंकि एनसीईआरटी अब बंद हो चुकी है तो ज्यादातर लोग अब यही पढ़ रहे हैं. ये थोड़ा एग्जॉस्टिव भी है और इधर 1-2 सालों में आप देखेंगे जीएस में एंशिएंट मिडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो ये काफी पॉपुलर हो गई, आप ये पढ़ सकते हैं अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए. मिडाइवल हिस्ट्री में ये बुक बहुत पॉपुलर है सतीश चंद्रा साहब की. यही एनसीईआरटी भी आती थी पहले, अब ये बंद हो चुकी है. इसकी कॉपीज मिल जा रही है लेकिन वैसे पब्लिकेशन बंद हो गया, तो बच्चे ज्यादातर इसी को पढ़ने लगे हैं. आप इसको पढ़ सकते हैं. थर्ड, इसमें स्पेक्ट्रम आप पढ़ते रहिए अपना, जो आप ऐसे भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं. बाकी जो बिपान चंद्रा वाला इश्यू है वो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि क्लास में मेरे जो क्लास नोट्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा बिपान चंद्रा डाल दिया है मैंने, जो भी काम की चीज है, तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा. इसमें फिर ये वाली किताब नॉर्मल लोवे काफी पॉपुलर होती है ऑप्शनल वाले बच्चों के साथ. बहुत हद तक मैंने इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया अपने पीडीएफ में. बाकी जो थोड़ा मोड़ा बचा वो क्लास नोट्स में लिखवाई देता हूं, आप उससे कर लीजिएगा. थोड़ा सा जो बच जाता है, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है खुद से टेक्स्ट बुक, तो ये एक टेक्स्ट बुक है ओरियन ब्लैकस्वाइन की, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्जुन देव एंड इंदिरा अर्जुन देव. ये आपको खुद से करनी होगी. दैट्स इट. इसके अलावा I am going to give you most of the things through PDF, through class notes. I don't think there is any need to worry about the notes or material in history. We have enough material in history. The only thing which you have to worry about is how you are going to prepare the thing. And for that, the only thing which I need from your side is your time, your dedication, your perseverance, and your patience. If you are ready to give that, I assure you that you are going to get very good marks in this subject. It is the easiest subject to understand, the easiest one. It is like a story. Okay, so that is all what I would have to tell you about this optional subject. Hope to meet you guys in the class. Thank you very much for giving your time. See you soon. Bye. Have a nice time.